ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। 5th November is observed as World Tsunami Awareness Day. World Tsunami Awareness Day 5th ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ Strengthening Disaster Risk Governance. Strengthening Disaster Risk Governance ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ADB ਦੁਆਰਾ $132.8 ਮਿਲੀਅਨ $132.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $132.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ADB ਦੁਆਰਾ। ADB ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 68 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮਸਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ ADB ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ HDFC Bank. HDFC Bank is the most outstanding company financial sector in India according to a poll conducted by well-known publication Asia Money. According to Asia Money ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC Bank ਮੋਸਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ M ਸੈਮਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ M ਸੈਮਿਊਲਸ? ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ M ਸੈਮਿਊਲਸ ਇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ICC ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ICC ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਕ ਰੈਡਵੁੱਡ ਫਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 100% ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਕ ਰੈਡਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ DRDO ਦੁਆਰਾ ਪਿਨਾਕਾ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦੀਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਿਸਟਮ with strike range of 37 km and can fire 12 rockets with time interval of 44 seconds. ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਕਟ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਨਾਕਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚੰਦੀਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ CEO ਆਫ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ KL ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਕਲਵਿਆ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕਲਵਿਆ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟਰ KL ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੈਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ, ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੈਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਟੈਨੂਅਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੂਅਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇਹ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਮੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰੂਵਿਊਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਰੈਜੂਵਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਗਮੈਂਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਰੈਜੂਵਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 1810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੁਹਰੀ ਸਟੇਟ 1 ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ। 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੁਹਰੀ ਸਟੇਟ ਫਰਸਟ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ USA ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਰਾਟ 2020 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ USA ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਟਾਕਸ GCC ਕੀ ਹੈ? ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਫੈਸੀਲਿਟੇਟ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਰਕ ਇਨ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ GCC ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਬਹਿਰੇਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ UAE। 6 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਬਿਲਡਸ ਐਸਟਰਾਵੈਟਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਲਾਰੂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਈਨਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਮੇਘਾਲਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ C452 ਜਿਸ ਨੂੰ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੌਬਲੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਤਨਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੜੀਸਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ 243 ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 243। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 90 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਣੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਓ ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਾਓ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ COVID-19 ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
द्रोणाचार्य अवार्ड डिस्कस करेंगे ਆਪਾਂ द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली स्टैटिक पोर्शन ਦੇ रिगार्डिंग कुछ बच्चे अवार्ड्स कह रहे हैं, कुछ बच्चे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह रहे हैं। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ कि बारी बारी हर एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे। पहले आप अवार्ड्स कंप्लीट करांगे द्रोणाचार्य अवार्ड्स। बेसिकली अगर आप गल करिए नैक्सट वीक तक पूरे हो जाएंगे। नैक्सट वीक अगर आप लगाइए दिवाली तक आप नॉर्मली खत्म कर लाँगे अवार्ड नूं। उस तो बाद आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर लाँगे। ठीक है, बारी बारी हर एक चीज़ डिस्कस कर लाँगे, कोई ज़्यादा वड्डी गल नहीं है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है जिहड़ा 13 लोगों को दिता गया। बेसिकली 8 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी दे विच और 5 लोगों को रैगूलर कैटेगरी दे विच। लाइफ टाइम कैटेगरी और रैगूलर कैटेगरी। लाइफ टाइम बेसिकली अगर आप गल करते हैं दोनों कैटेगरीज के बारे डिस्कस करांगे। जिस तरीके नाल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दे विच राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की प्राइज़ मनी नूं 7.5 लाख तो 25 लाख कर दिता गया सी, उसे तरीके नाल द्रोणाचार्य अवार्ड दे विच दो चीज़ां याद रखनियां ने। लाइफ टाइम कैटेगरी दे विच 15 लाख कर दिता गया सी। दोनों की जिहड़ी अमाउंट सी 5 लाख सीगी द्रोणाचार्य अवार्ड दे विच लाइफ टाइम और रैगूलर। लाइफ टाइम दे तो 15 लाख किया गया और रैगूलर कैटेगरी दे विच 10 लाख किया गया। इत्थे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइफ टाइम कैटेगरी दे विच 15 लाख और रैगूलर कैटेगरी दे विच 10 लाख किया गया। टोटल 8 परसनस नूं लाइफ टाइम अवार्ड दिता गया। 8 दे विचों 4 अज डिस्कस कर रहे हैं, कल एक बार दोबारा रिवाइज करांगे और उस तो नैक्सट डे दोबारा डिस्कस करांगे इन्हों। धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी दे लई द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली कह सकते हैं कि कोचिज़ नूं दिते जांदे ने, जिहड़े कोच हुंदे ने। तो पुरुषोत्तम राय एथलैटिक्स दे लई, शिव सिंह नूं बॉक्सिंग दे लई और रोमेश पथानिया नूं हॉकी दे लई। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड दे विच। क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं कि पुरुषोत्तम राय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, शिव सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आपने स्पोर्ट्स दसनी है। धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी, पुरुषोत्तम राय एथलैटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग और रोमेश पथानिया हॉकी दे लई। नैक्सट अज की फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच डे इज ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली की हुंदा है कि अगर लड़ाई हुंदी है, वॉर हुंदी है, तो की हुंदा है या फिर दो आर्म्ड फोर्सिस लड़दियां ने, तो की आंदा इन्वायरमेंट नूं सब तो ज़्यादा नुकसान हुंदा है। इन्वायरमेंट नूं सब तो ज़्यादा नुकसान हुंदा है। हुण इस चीज़ नूं रोकण दे लई अवेयरनैस दे लई एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इसनूं 6 नवंबर नूं हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन नूं 6 नवंबर नूं हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी। कल की आप गल करिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनैस डे डिस्कस किया कल आपने, हुण भी दोबारा डिस्कस किया है। तो 5 नवंबर नूं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनैस डे, सुनामी टी साइलेंट हुंदा है, सुनामी अवेयरनैस डे 5 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, अज 7 नवंबर है। कल की गल करते हैं तो कल दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 4 नवंबर नूं आपां ने डिस्कस किया, 4 नवंबर के बारे आप डिस्कस किया कि गंगा रिवर नूं 2008 दे विच नैशनल रिवर का दर्जा दिता गया सी। 2 नवंबर और 1 नवंबर, बेसिकली 1 नवंबर की ही गल करिए तो 1 नवंबर नूं आपां ने काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया सी। और 2 नवंबर की गल करते हैं तो इंप्योरिटी फॉर क्राइम्स की गल की सी अगेंस्ट जर्नलिज्म। इंप्योरिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म के अगेंस्ट जोड़े क्राइम्स ने उन्होंने रोकने के लिए दिन ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट है हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उन्हें आप डिस्कस करके हटे हैं कि 4 नवंबर नूं गंगा रिवर के रिलेटेड इसनूं 2008 दे विच ऑब्जर्व किया गया सी कि नैशनल रिवर बनाया गया। तो इस करके की किया जाता है हर साल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, इस साल भी ऑर्गेनाइज की गई, 3 दिन की मीटिंग सी जी ऑर्गेनाइज की गई है। और इस दे विच ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चाचा चौधरी नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। चाचा चौधरी बेसिकली छोटे होंदे तुसीं बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कार्टून देखा होगा, चाचा चौधरी और साबू। ठीक है, तो वही चाचा चौधरी नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। सोनू सूद नूं एसर के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी रिसेंटली UNDP वालों
ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਰਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ। ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, परसों डिस्कस किया शायद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है जिहड़ा उसके ब्रांड एंबेसडर विश्वानाथन आनंद अपॉइंट किए गए थे। चैस तो बिलोंग करते हैं, चैस प्लेयर ने, लेजेंडरी चैस प्लेयर के नाम तो जाने जाते हैं, याद रखने। आमिर खान की गल करते हैं वैंदातू के ब्रांड एंबेसडर आमिर खान। इस तो इलावा आमिर खान नूं ही सीएट टायर्स के भी ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। राजकुमार राव कल या परसों ही डिस्कस किया सिस्का के ब्रांड एंबेसडर राजकुमार राव अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टार्टअप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ वूमेन हैव वॉन कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज किन्ने स्टार्टअप्स नूं अवार्ड दिता गया? कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज अवार्ड किन्ने स्टार्टअप्स नूं दिता गया? बेसिकली किन्नी नवे बिजनेसिस कह सकते हैं, स्टार्टअप्स कह सकते हैं, किन्ना नूं दिता गया? 6 नूं दिता गया। 6 स्टार्टअप्स नूं दिता गया। बेसिकली जिहड़ा ये अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज किया गया माई गवर्नमेंट पोर्टल है जिहड़ा इंडिया का, प्लस यूनाइटेड नेशन वूमेन द्वारा, यूनाइटेड नेशन वूमेन काउंसिल है जिहड़ी इन्हां द्वारा मिल के ऑर्गेनाइज किया गया। 6 स्टार्टअप अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे, नाम अपने लिए डायरैक्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि किन्ने स्टार्टअप्स नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। नैक्सट है प्रसार भारती की गल करते हैं। इस दे रिलेटेड हुणे आपां एक न्यूज़ डिस्कस करके हटे हैं, कल डिस्कस की सी, हुण रिवीजन दे भी डिस्कस की है कि जिहड़े प्रकाश भारती के CEO सीगे शशि शेखर इन्हां नूं की किया गया? अपॉइंट किया गया TV गाइडलाइनस नूं, जिहड़ी एडवरटाइजिंग गाइडलाइनस ने उन्हां नूं रिव्यू करन दे लई इन्हां नूं अपॉइंट किया गया। कमेटी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई है। हुण इन्हां ने की किया? प्रसार भारती द्वारा ही IT मिनिस्ट्री के नाल, IT मिनिस्ट्री की गल करते हैं। IT मिनिस्ट्री किन्ना लवे है? रविशंकर प्रसाद लवे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, IT मिनिस्ट्री है, इस तो इलावा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है। ठीक है। पटना बिहार तो लोक सभा MP ने इस मिनिस्ट्री के नाल पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है की करन दे लई? टू लॉन्च एजुकेशनल TV चैनल्स लॉन्च करन दे लई। किन्ने चैनल्स लॉन्च किए जाएंगे? 51 चैनल्स, 51 चैनल्स लॉन्च करन दे लई। बेसिकली जिहड़े एजुकेशनल TV चैनल्स ने ये होम टू होम एजुकेशन पहुँचाने के लिए प्रसार भारती द्वारा इस इनिशिएटिव नूं लिया गया। प्रसार भारती की गल करते हैं 1997 दे विच बनाई गई सी, दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। इस तो इलावा शशि शेखर नाम याद रखना, CEO ने प्रसार भारती दे। ठीक है, याद रखने। नेक्स्ट है विच टेनिस प्लेयर बिकम्स 4th मैन टू रीच 1000 मैच विन्स। बेसिकली ऐसे केड़े चौथे पर्सन बने ने, केड़े टेनिस प्लेयर चौथे टेनिस प्लेयर बने ने जिन्होंने 1000 मैच जीत ले ने? 1000 मैच जीतने वाले चौथे प्लेयर बने ने राफेल नडाल स्पेन तो बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल याद रखना। इस तो इलावा फर्स्ट नंबर पर बने सीगे जिमी कॉनर्स हुण इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। बेसिकली इन्हों द्वारा 1274 मैचिज जीते जा चुके हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड तो बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, 1224 मैचिज जीत चुके हैं। इवान लैंडी तीसरे नंबर पर ने, इवान लैंडी 1068 मैचिज और चौथे नंबर पर रिकॉर्ड बनाया राफेल नडाल ने 1000 मैचिज जीते ने टेनिस के। ठीक है जी, याद रखना। अच्छा, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विबिल्डन ओपन और चौथा किहड़ा है? US ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विबिल्डन ओपन और US ओपन। ठीक है, इस साल 2020 का विबिल्डन ओपन कैंसल किया गया सी, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया कोविड-19 कारण। फ्रेंच ओपन पोस्टपोन किया गया सी पहले। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल दूसरे नंबर पर US ओपन खेलिया गया और तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन खेलिया गया। ठीक है, क्वेश्चन की है हुण, क्वेश्चन ध्यान नाल सुनना है कि फ्रेंच ओपन दे विच
मैन सिंगल टाइटल और वूमेन सिंगल टाइटल किन्ना ने जीते है कमेंट बॉक्स में दसना है। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया, लास्ट मंथ ही डिस्कस किया है। मैन सिंगल टाइटल और वूमेन सिंगल टाइटल दसना है फ्रेंच ओपन का। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज़ चेयर्ड 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप। सार्क की फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की 40वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। 40th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, किन्ना द्वारा इसनों चेयर किया गया। इसके चेयरपर्सन कौन रहे ने? सुब्रमण्यम जयशंकर, और सॉरी सुब्रमण्यम जयशंकर नहीं, शक्तिकांत दास। थर्ड ऑप्शन शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने इन्हों द्वारा सार्क की फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की मीटिंग नूं चेयर किया गया। 40वीं मीटिंग सी, याद रखनी है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए सार्क की, तो सार्क का हैडकुआटर कित्थे है? काठमांडू नेपाल दे विच। ये याद रखना है। साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कितनी मीटिंग सी? 40वीं मीटिंग सी, और सार्क का हैडकुआटर काठमांडू नेपाल दे विच है। हुण बाकी अगर आरबीआई की गल करते हैं, पहले 1 अप्रैल 1935 दे विच बनाई गई सी। ठीक है, इस तो इलावा आरबीआई की ही गल करिए तो आरबीआई दे विच 4 डिप्टी गवर्नर्स होंदे ने। 4 डिप्टी गवर्नर्स दे विच बीपी कनुगो, MK जैन, वायरल वी आचार्य है। इस तो इलावा जिहड़ा चौथा नाम है, वायरल वी आचार्य नहीं है शायद, बीपी कनुगो, MK जैन, और तीसरा नाम माइकल डी पात्रा है। तीसरा नाम माइकल डी पात्रा है। वायरल वी आचार्य द्वारा टर्म खत्म हो गई थी इन्हों, माइकल डी पात्रा। चौथा नाम बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किया गया। चौथा नाम केड़ा है? राजेश्वर राव। चौथा नाम केड़ा है? M राजेश्वर राव। ठीक है जी, याद रखने ने। शक्तिकांत दास 4 डिप्टी गवर्नर, जिन्होंने विचों माइकल डी पात्रा अपॉइंट किए गए सी रिसेंटली, और उस तो बाद राजेश्वर राव नूं रिसेंटली अपॉइंट किया गया। बाकी ऑप्शनस दे विच 2 न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सुनील अरोड़ा इलैक्शन कमिश्नर ने इंडिया के चीफ इलैक्शन कमिश्नर। इंडिया के इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने एक, और उन्होंने अंडर 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। 2 इलैक्शन कमिश्नर के विचों दूसरे सुशील चंद्र ने, और जिहड़े रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं उन्होंने नाम है राजीव कुमार। फाइनैंस सैक्रटरी होंगे सी, उन्होंने अपॉइंट किया गया। की अपॉइंट किया गया? इलैक्शन कमिश्नर। हुण इलैक्शन कमिशन की ही गल करते हैं, आर्टिकल 324 दे विच है, ये याद रखना है। इलैक्शन कमिशन ने 3 दिन की इंटरनैशनल वर्चुअल इलैक्शन विजिटर प्रोग्राम लॉन्च किया। 3 दिन का इंटरनैशनल वर्चुअल इलैक्शन विजिटर प्रोग्राम लॉन्च किया फॉरन इलैक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के लिए। 40 कंट्रीज़ के विचों डिफरेंट डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि इलैक्शन कमिशन, इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? चीफ इलैक्शन कमिश्नर। 2 जो डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर ने, एक रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इस करके उन्होंने नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा। इलैक्शन कमिशन किन्ने आर्टिकल दे विच है, ये इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर की गल करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी कि जोड़े S जयशंकर ने, इन्होंने इंडिया को रिप्रजेंट किया है इंडिया नॉर्दिक बैल्टिक कॉन्क्लेव। मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई नॉर्दिक कंट्रीज़ की और बैल्टिक कंट्रीज़ की। नॉर्डिक भी एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, और बैल्टिक ग्रुप है एक कंट्रीज़ का। ठीक है, किस दे लई? कोविड-19 टैकल करने के लिए इन्होंने कंट्रीज़ के नाल मीटिंग ऑर्गेनाइज की इंडिया ने। नॉर्डिक कंट्रीज़ की गल करते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। 5 कंट्रीज़ मैंबर ने नॉर्डिक कंट्रीज़ दियाँ। नॉर्डिक का बेसिकली मतलब है नॉर्थ आइलैंड्स, जो नॉर्दर्न आइलैंड कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा जाता है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, इसके अलावा बैल्टिक कंट्रीज़ के विच इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। 3 कंट्रीज़ में बैल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। ठीक है जी, इस तो इलावा किन्नी कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी याद है सूँ? अगर आप गल करिए डेनमार्क, डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन, करंसी क्रोन। फिनलैंड, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, करंसी यूरो है। आइसलैंड, आइसलैंड की अगर आप गल करिए, आइसलैंड कैपिटल सी रेकजविक। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे कैपिटल की है? नॉर्वे कैपिटल तो ईजी है, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो।
नॉर्वे कैपिटल ओस्लो है, स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम है, स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इस्टोनिया की, इस्टोनिया जी कंट्री है, इस्टोनिया की जी कैपिटल है वह सी मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, इस्टोनिया कैपिटल टैलिनिया, टैलिन समथिंग इस तरीके की कैपिटल है इस्टोनिया की। लैटविया, लैटविया कैपिटल पहले डिस्कस की हुई अपने रीगा, लैटविया कैपिटल रीगा है, करेंसी यूरो चलती है। और लिथुनिया है जी, इस बारे तो पहले भी डिस्कस किया है, कल भी डिस्कस किया शायद, विलनियस, लिथुनिया कैपिटल विलनियस है, करेंसी इत्थे लितास चलती है। कैपिटल और करेंसी इंपोर्टेंट बननी है, दो दो तीन तीन करके आप डिस्कस करते होंगे। वैसे जिन्नी भी कंट्रीज न्यूज़ के रहिंदियां ने उन्हों की कैपिटल और करेंसीज आप बार बार डिस्कस करते होंगे। इस तरीके मैनू याद हुई ने, इस तरीके सोनू भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। बुक रिलीज की गई है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। बेसिकली मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो पहले बीजेपी किस तरीके की होंगी सी, इस चीज़ के बारे बुक रिलीज की गई है। बुक के राइटर ने विजय सीतापति, विनय सीतापति, विनय सीतापति द्वारा इस बुक को लिखा गया। सरबप्रीत सिंह, नाइट्स ऑफ रेस्टलैस स्पिरिट, आप बुक डिस्कस की थी बेसिकली 84 के दंगियां के उत्ते, मैसेकर ऑफ 1984, इस चीज़ के उत्ते इस बुक को लिखा गया। प्रदीप श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव ने बाय बाय करोना बुक लिखी है, जिसनों रिलीज़ किया गया सी आनंदीबेन पटेल द्वारा। यूपी के या MP के गवर्नर कह सकते हैं आनंदीबेन पटेल, इन्हों द्वारा इस बुक को जारी किया गया। GBS सिद्धू द्वारा बुक लिखी गई सी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, खालिस्तान के उत्ते बुक लिखी गई सी GBS सिद्धू द्वारा द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। एस एल बरियप्पा ने कन्नड़ बुक लिखी सी, कन्नड़ बुक नहीं लिखी सी, कन्नड़ लैंगुएज दे विच बुक लिखी सी, बुक का नाम सी अंचू, बुक का नाम सी अंचू। बुक न्यूज़ दे विच आई सी किस करके कि इस बुक को इंग्लिश दे विच रिलीज़ किया गया, इंग्लिश वर्जन, जिसका नाम रखा गया सी ब्रिंक, जिसका नाम ब्रिंक रखा गया सी। ठीक है जी, ये फैक्ट्स याद रखने ने। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम टू हेल्प इट्स एम्प्लॉय to deal with their personal problems and professional issues through psychological counseling। बेसिकली एम्पलॉयज़ के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू की है, एक प्रोग्राम शुरू किया है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। किहड़े बैंक द्वारा शुरू किया गया इसनूं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया। वडोदरा गुजरात के हैडकुआटर है, याद रखना है, क्योंकि ऐसे बैंक एग्जाम के पूछे जाते हैं, हैडकुआटर उन्होंने बैंकों का पूछा जाता है जिन्होंने बैंकों का मुंबई के नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक आप डिस्कस करते होंगे हैडकुआटर मुंबई के है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई है, ICICI भी मुंबई है, HDFC भी मुंबई और येस बैंक का भी हैडकुआटर मुंबई के है। क्वेश्चन हैडकुआटर उन्होंने पूछा जाता जिन्हों का मुंबई के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया चेन्नई के हैडकुआटर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिहड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्हों द्वारा एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, इस तो इलावा कुछ न्यूज़ होर ने वो डिस्कस करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जी सबसिडरी है SBI कार्ड्स के नाल मिलके पेटीएम ने की करिया, पार्टनरशिप की है, लॉन्च किया है पेटीएम SBI कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। बेसिकली जो SBI कार्ड्स द्वारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाते हैं, इन्होंने पेटीएम के नाल मिलके पेटीएम और SBI का जॉइंट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, SBI ने ही रिसेंटली आप डिस्कस किया, SBI ने ही लॉन्च किया दिल्ली कॉरपोरेशन के नाल, दिल्ली मैट्रो ट्रांसपोर्ट के नाल, जिहड़ा कि दोनों तरीके नाल काम करेगा। ICICI बैंक द्वारा ICICI बैंक माइन इंडिया का पहला बैंकिंग प्रोग्राम फॉर मिलीनियर कस्टमर्स। बेसिकली आप आ गए मिलीनियर कस्टमर्स के विच किहड़े हुंदे ने जिहड़े कि 18 साल तो 35 साल के विच तक हुंदे ने, उन्होंने मिलीनियल कस्टमर्स कहा जाता है। इन्हां दे लई ICICI बैंक माइन की सुविधा लॉन्च की है ICICI बैंक ने। ठीक है जी, याद रखना है।
नेक्स्ट है हु हैज़ स्टार्टेड नर्चरिंग नेबरिंग चैलेंज। नर्चरिंग नेबरिंग चैलेंज लॉन्च किया गया, नर्चरिंग नेबरिंग चैलेंज विद हैल्प ऑफ बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन नीदरलैंड। नीदरलैंड की एक फाउंडेशन के नाल मिलकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है। बेसिकली इसनूं लॉन्च किया गया पहले हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने, इस तो इलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो, ठीक है। इन्हां द्वारा इस चैलेंज नूं लॉन्च किया गया। क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने नेचरिंग नेबरिंग चैलेंज किहड़ी कंट्री की हैल्प के नाल लॉन्च किया है, नीदरलैंड की हैल्प के नाल। दूसरा क्वेश्चन किन्ना ने लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। किस दे लई लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली सिटीज़ नूं डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया। हुण अगर आप गल करिए इस दे विच की चीज़ है कि जिहड़ी हरदीप सिंह पुरी ने, अच्छा इन्हां दे बारे डिस्कस कर लिया अपने। राजनाथ सिंह की गल करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नीदरलैंड की कैपिटल और करंसी दसनी है, नीदरलैंड कैपिटल और करंसी काफ़ी बार डिस्कस की अपने, कमेंट बॉक्स के विच आंसर देने। इस तो इलावा RK सिंह की गल करते हैं, पावर और रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने, आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। जितेंद्र सिंह डॉनर मिनिस्टर ने, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, वाराणसी UP तो लोक सभा MP ने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। बेसिकली इस 20 कंट्रीज द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर UPI बेस्ड पेमेंट्स। बेसिकली किहड़े प्लेटफॉर्म नूं NPCI याद रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस दे बारे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बार बार न्यूज़ दे विच रह रहा है। NPCI की गल करिए, नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और 2008 दे विच बनाया गया सी, ठीक है। इसने ब्रिटेन के नाल एग्रीमेंट साइन किया, ब्रिटेन की फाउंडेशन के नाल, ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट के नाल, याद रखना है। इस तो इलावा हुण इसने की किया, अप्रूवल दी है UPI बेस्ड पेमेंट के लिए किस प्लेटफॉर्म नूं, WhatsApp नूं। हालांकि इस दे बारे पहले भी शुरू किया जा रहा सी पर अप्रूवल नहीं आई सी। फाइनल अप्रूवल NPCI द्वारा दी जाती है इंडिया के विच, तो NPCI द्वारा फाइनल अप्रूवल दे दी गई है। तो WhatsApp की करेगा, अपनी पेमेंट सर्विस नूं शुरू करेगा, ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए WhatsApp नूं फेसबुक द्वारा ही रिसेंटली बाय कर लिया गया सी। इस तो इलावा इंस्टाग्राम नूं भी बोरो किया गया सी फेसबुक द्वारा। फेसबुक द्वारा ही जियो दे विच 9.99% स्टेक बाय किया गया सी। फेसबुक द्वारा ही प्ले गीगा एक कंपनी सी, इसनूं एक्वायर किया गया सी। इस तो इलावा गीफी नाम की वैबसाइट नूं भी एक्वायर कर लिया गया सी फेसबुक द्वारा, ठीक है, याद रखना है। ये चीज़ां याद रखनियां ने। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री साइंड MOU विद Beximco Pharmaceutical Limited and the Serum Institute of India for priority delivery of 3 crore COVID-19 वैक्सीन डोसिस। 3 करोड़ COVID-19 वैक्सीन डोसिस की प्रायोरिटी डिलीवरी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और Beximco Pharmaceutical Limited के नाल MOU साइन किया है। किहड़ी कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है? बांग्लादेश ने। बेसिकली कि अगर इंडिया के विच COVID-19 की वैक्सीन बनाई जाती है तो उसनूं प्रायोरिटी डिलीवरी किहड़ी कंट्री नूं दी जाएगी? बांग्लादेश नूं। पहले भी इस चीज़ के बारे डिस्कस किया सी अपने। तो हुण फाइनल एग्रीमेंट की किया गया कि 3 करोड़ डोसिस दी जाएगियां, लगभग 3 करोड़ डोसिस प्रायोरिटी बेसिस से डिलीवर की जाएगियां बांग्लादेश नूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और Beximco फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दे नाल। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करांगे। सब तो पहले चाइना सस्पेंड्स जैक मास कंपनी अलीबाबा ग्रुप एंड आंट ग्रुप टू वर्क इन हांगकॉन्ग। बेसिकली अगर आप गल करते हैं चाइना की, तो चाइना के आले दुआले जी कंट्रीज़ ने, कुछ कंट्रीज़ ने, फॉर एग्जाम्पल हांगकॉन्ग हो गया, तिब्बत हो गया, ये ऐसी कंट्रीज़ ने जिथे चाइना कहता है कि साडा राज है, पर हालांकि ये कंट्रीज़ खुद को इंडिपेंडेंट दसदियां ने, पर
ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੈਕਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੈਕਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਕਮਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਈਵੋਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਐਲੈਸੇਨੇ ਕਿਊਟੇਰਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 96% ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੈਸੇਨ ਕਿਊਟੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਵੇਰੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਮੂਸਕੂਰੋ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਈਕੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਈਵੇਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 8 ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਈਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। MM ਨਰਵਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰਰੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਆਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਕੰਟਰੀ ਕੌਟ ਅੰਡਰ ਹਰੀਕੇਨ ਈਤਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਨੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੋਨੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਹਰੀਕੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀਕੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ, ਏਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੋਨੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨਲਾਵੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਲਾਵੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਾਨਾਗੁਆ, ਕਰੰਸੀ ਕੋਰਦੋਬਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ 87th ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਆਫ 3 ਰਫਾਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਂਡਡ ਐਟ ਜਾਮਨਗਰ 에ਅਰਬੇਸ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਮਨਗਰ 에ਅਰਬੇਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਨਗਰ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਾਲ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਚ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1 ਰਫਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਰਫਾਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ CHSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਫਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਏ ਨੇ, 3 ਹੋਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਮਨਗਰ 에ਅਰਬੇਸ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਜਾਮਨਗਰ 에ਅਰਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਨੇ, 36 ਆਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਣੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ EK ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਮਾ ਕੈਂਟੀਨਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੂਡ ਐਟ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮਾ ਕੈਂਟੀਨਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਮਾ ਕੈਂਟੀਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਸ
द अम्मा कैंटीन्स किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कीतियां गई ने? तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कौन ने? E.K. पलानास्वामी। गवर्नर कौन ने तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 29.83 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ताकि 38ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇम्स ऑर्गेनाइज ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। वैसे ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अमाउंट नहीं पूछी जाएगी कि कितनी अमाउंट सैंक्शन की गई है। क्वेश्चन की पूछा जा सकता है कि 38ਵੀਂ नैशनल गेम्स कित्थे ऑर्गेनाइज की जाएंगियां? उत्तराखंड के। ठीक है, इसी तरीके नाल अगर आप गल करिए 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज की जानियां सी गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, आप डिस्कस किया सी नैशनल गेम्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ 36ਵਾਂ सैशन ਸੀगा। 36th सैशन गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाना सी। कोविड-19 के कारण इसनूं पोस्टपोन किया जा रहा सी बार बार। इस तो इलावा याद रखना इस दे लई रूबीगुला फ्रेम थ्रोटेड बुलबुल पहले डिस्कस किया होया आपां ने। इस दे लई कह सकते हैं चूज किया गया सी रूबीगुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। 37th की गल करिए 36th आप डिस्कस कर ली गोवा दे विच, 38th उत्तराखंड दे विच, तो जिहड़ी विचाले 37th बची है 2021 के लिए उसनूं छत्तीसगढ़ अनाउंस किया गया सी। ठीक है, छत्तीसगढ़ अनाउंस किया गया है, याद रखना है। इस तरीके नाल जिहड़ी 39th है 2023 दे विच उस दे लई मेघालय वो कित्थे ऑर्गेनाइज होणगियां? मेघालय दे विच। नेक्स्ट है अंडेमान निकोबार दे बेसिकली टेरेसा आइलैंड दे विच, अंडेमान निकोबार दे टेरेसा आइलैंड दे विच बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इंडिया द्वारा इंडिया की जिहड़ी फोर्सिस ने इन्होंने कंडक्ट की है बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज। ठीक है, किसी कंट्री के नाल नहीं आपस के विच ही ऑर्गेनाइज की गई है। जिस तरीके नाल आपां डिस्कस की सी सुदर्शन एक्सरसाइज, सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई सी राजस्थान के विच। तो उस तरीके नाल बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज याद रखनी है टेरेसा आइलैंड, अंडेमान एंड निकोबार। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करदे रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।